वो ऐसा वक्त था जब लोग किसी भी बात पे यकीन कर रहे थे. People always used to call me कि हमें ये छोड़ना है. तो मेरा पूरा वक्त या तो दिन भर used to feed dogs and go around the city and doing something for those stray dogs जिनका कोई भी नहीं है, और या फिर मेरा वक्त निकलता था फोन पर लोगों को काउंसलिंग करने में, समझाने में कि इससे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम इनटू दिस. आई हैव माय ओन पेट शॉप. I have like 3 pet shops. I have a dog hostel. I have a dog boutique. I have a salon for dogs. I'm into everything related to dogs, and that is how I suggest everybody. 3 सालों में 3,500 बच्चों को अडॉप्ट कराने का जो मेरा जर्नी है, it has been phenomenal and incredible because लोगों की सोच को बदलना, उनके उस ब्यूटी के जो डायनामिक्स है उनको चेंज करके और उनको स्विच करना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. और मैं एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को, सच्चा एग्जांपल है कि भाई, यू डोंट लुक लाइक ऋतिक रोशन, आई डोंट लुक लाइक रणवीर सिंह, बट दैट डज नॉट मेक्स अस लेस ऑफ अ मैन. बच्चा इंसान का और डॉग का जिम्मेदारी बराबर है, प्यार भी बराबर और साथ भी बराबर. अगर आप निभा सकते हो तो ही लाओ. व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ डॉग्स अराउंड यू. घर के बाहर निकलो, गली के बाहर निकलो, आपको सैकड़ों कुत्ते मिलेंगे और वो रेडी है, विलिंग है आप पर अपना पूरा प्यार नौछावर करने के लिए. आप जाके उनके करीब एक बार महसूस तो कीजिए उस एनर्जी को, उस अनकंडीशनल लव को. आजकल न्यूज में बहुत सारे डॉग बाइटिंग इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर देयर इज अनदर साइड, अ वेरी ब्यूटीफुल साइड टू दिस पेट स्टोरी. और जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ही इज गोइंग टू बी स्पीकिंग अबाउट जस्ट दैट. Viren Sharma, also called the DogMan, joins me from Jaipur to speak about looking after pets as a profession. And he also tells me that सोच बदलनी है. Remarkable journey, Viren. I've been reading a lot about, your work. And so I want to go through your journey. But before that, I want to ask you, as a very unconventional profession, what did it take for you to convince your family to become the DogMan? It was not that difficult for me though to convince my parents because dogs have been into my blood. My father has always used to keep dogs, and I am so happy to share that we have the oldest veterinary medical store in Rajasthan. It was established by my great grandfather in 1957. Although it was completely based on the large animals, as animal husbandry, sheep, goat, cow, buffaloes, everything, camels, being in Rajasthan. But then eventually, my interest was into dogs, so I shifted my interest from those large animals to small animals, which I can also keep. I can live with them. I can happily, make them like a culture. So when is it that you realized that this is what you want to do? My journey started 20 years back when I was just a teenager, and the moment I finished my school, I wanted to do something. I did not wanted to pursue the rat race or become a doctor or an engineer, all the stereotype goals that has been set by the society for all the youngsters to pursue and follow. I never wanted to be a part of it because I knew I don't worth it. Probably I wanted to do something which makes me happy, and I was so blessed. I am still so blessed that whatever my passion was, I pursued it as a profession, and God gave me this opportunity to be the pioneer in my state, in my city, and to set such benchmarks that people follow, that people wish to do, people aspire to be. So here I am. No, of course, and I think there is no bigger respect than becoming an inspirational figure yourself, which you are. COVID has been a testing time, Viren. बहुत लोगों ने अपने pets को abandon किया है, misconceptions all around. What did you come across during that time? COVID was something which was the world was never prepared for. We never knew what exactly this problem is. I'm talking from the first lockdown. What exactly the virus is, how does it spreads. There was no vaccine, there was no line of treatment, there were no medication available. Doctors were clueless about it. So yes, and there were a lot of theories also which were going against the dogs, that dogs might be the carrier, cats might be the carrier. और वो ऐसा वक्त था जब लोग किसी भी बात पे यकीन कर रहे थे. जो नेगेटिव न्यूज थी उसे ज्यादा लोग सीरियसली ले रहे थे, और ऐसी नेगेटिव न्यूज उस वक्त आई कि डॉग से और कैट से कोविड होता है. हालांकि बाद में WHO ने जब देखा थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग अपने डॉग्स को छोड़ रहे हैं, पेट्स को छोड़ रहे हैं, तो दे केम टू द रेस्क्यू एंड दे ऑफिशियली
made a lot of statements also to clear the concept and clear the confusion going around. तब ये हालत थी कि बहुत सारे लोग, people always used to call me कि हमें ये छोड़ना है, तो मेरा पूरा वक्त या तो दिन भर used to feed dogs and go around the city and doing something for those stray dogs जिनका कोई भी नहीं है, और या फिर मेरा वक्त निकलता था फोन पर लोगों को काउंसलिंग करने में, समझाने में कि इससे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनफैक्ट बहुत बार ऐसा हुआ कि lot of people, lot of families, they were completely positive. The entire family was positive. So they left all their dogs with us. I said, आप छोड़ो मत, आप जब तक ठीक नहीं होते मेरे घर पे आप अपना डॉग छोड़ दो. I have a space. I will keep your dog. I will accommodate him. आप कोविड इन्फेक्टेड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके घर पे आके आपके डॉग से ले जाऊंगा, मेरे नहीं होगा कुछ भी. चाहे आपका डॉग आप उसे एज अ कैरियर देख रहे हो, या हो सकता है कि आपके यहाँ पर वो डॉग है और जब मैं उसे अपने घर लेके आऊं तो वो एज अ कैरियर जेन्युइनली बन के, क्योंकि वो आपके साथ रह रहा है और आप पॉजिटिव हो, वो हो सकता है मुझे भी हार्म करे, बट आई एम लीविंग एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी. अगर भगवान चाहेगा तो मुझे बुलाएगा, और नहीं तो मैं जिंदा भी रहूंगा, इनकी सेवा भी करूंगा. दैट्स व्हाट पावर्ड मी, दैट्स व्हाट मोटिवेटेड मी. और गॉड विलिंग I never got positive in those days when I was trying to rescue all the dogs abandoned by people for different reasons. और वो dogs मेरे यहाँ पर रहे, और लकीली एक भी डॉग मेरे जो कम से कम टच में थे, जितने भी जो लोग थे, उनका एक भी डॉग ऐसा नहीं हुआ कि उसे उन्होंने छोड़ा हो या उन्होंने उसे कहीं रिजेक्ट कर दिया हो या अबैंडन कर दिया हो. काउंसलिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. उन दिनों में, कोविड के टाइम में, जब आप लोगों के पेट्स अपने पास रख रहे थे, उस समय कितने पेट्स एक टाइम पे आपके पास थे? मेरे पास उस वक्त 27 डॉग्स एट हाईएस्ट रहे हैं मेरे छोटे से घर में. इट्स नॉट अ बिग बंगलो, इट्स अर्बन मॉडर्न हाउस जो एक छोटा होता है 150 स्क्वायर यार्ड्स का, और वहां पर मेरा पूरा फर्स्ट फ्लोर जो था वो सिर्फ डॉग से भरा हुआ था. मतलब आप उसका गेट अगर आप खोलते तो दे यूज्ड टू पाउंस ऑन यू, बिकॉज वो सब अपने ओनर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बहुत मिस करते थे. तो द मोमेंट दे सी एनी ह्यूमन अराउंड एक्सेप्ट दोज केयरटेकर्स व्हिच आई हैड, luckily I had a team of around 13 people. I was paying them. I did not cut the salary even for a day. They were with me. They were taking care of all the dogs which I had. They were helping me in preparing all the food. They were helping in the distribution of the food, which we were going outrightly on the roads and distributing them. Everybody was there with me. So it was just possible because I had a dedicated dog loving team. You are also blessed. You are also lucky, and we are all envious. Absolutely. At least people like us who are at least dog lovers like us, I mean, if you ask my children, they'll say farm खोलना है, उसमें सिर्फ we just want pets. मगर दिल्ली में जगह ढूंढनी आसान नहीं है, वीरेन, but resources, दिल में जगह होनी चाहिए, सब पॉसिबल है. ये भी सही है. Well said. इतने सारे डॉग्स को घर में रखना, you got a team of caretakers, resources, how does that work? That was not the time to ask for donations or ask for help. That was the time to pour whatever you have. क्योंकि कहते ना कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, पर ये लम्हा जो है ना हर पल आपको याद दिलाएगा कि how good a soul you were. तो अगर मुझे मेरा घर भी बेचना पड़ा, या अगर मुझे अपना सेविंग्स भी पूरी की पूरी कंज्यूम करनी पड़ी, तो मुझे इस बात का कोई अफसोस या दुख नहीं है. बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर मैं जिंदा रहा तो भगवान ने ये 2 हाथ दिए हैं और काबिल हाथ दिए हैं, हम अपना फॉर्च्यून तो फिर से क्रिएट कर लेंगे. पर ये पैंडेमिक, ये क्राइसिस, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये पता नहीं आएगी नहीं आएगी. और ये पैसा अगर आपके पास है, आपकी सेविंग का भी है, वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर एसेट्स यू हैव, अगर आप ही जिंदा नहीं रहे तो क्या होगा फिर इसका. तो बेटर टू यूज इट इन अ गुड वे. कम से कम कल को अगर आप चले भी गए तो मन में अफसोस तो नहीं रहेगा कि आप किसी के काम नहीं आए, आप कुछ कर नहीं पाए सोसाइटी के लिए. सोसाइटी हम सबको बहुत कुछ देती है, पर सोसाइटी को हम कितना वापस देते हैं वो हमें महान बनाता है. And that's what I think differentiates people, greatness from ordinary life. But Viren, on a daily basis, away from, let's not talk just about COVID, how do you sustain? I am into this. I have my own pet shop. I have like 3 pet shops. I have a dog hostel. I have a dog boutique. I have a salon for dogs, and I read there is a dating app as well. Yes, so I am into everything related to dogs, and that is how I suggest everybody. Yes. Viren, adoption. Has the thinking changed in the country when it comes to adopting dogs now? See, I don't know about the country. I am from Jaipur, and Jaipur is a typical tier 2 city from India, and it's a complete Marwadi city. यहाँ लोग बहुत ज्यादा ब्यूटी सेंट्रिक हैं, हर चीज सुंदर चाहिए, घर, बहू, गाड़ी,
एवरीथिंग शुड बी ब्यूटीफुल। सो वहाँ यहाँ के जो 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 क्राइटेरिया है लोगों के सुंदरता को लेके वो बहुत फिक्स्ड है। तो जब मैंने अडॉप्शन अपना स्टार्ट किया था, एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था ये, कहीं से बच्चे आए, मैंने एक पोस्ट डाली, 1-2 घंटे में अडॉप्ट हो गए, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आज वो वक्त और ये इन 3 सालों में 3-3,500 बच्चों को अडॉप्ट कराने का जो मेरा जर्नी है, इट हैज बीन फिनोमिनल एंड इनक्रेडिबल, बिकॉज लोगों की सोच को बदलना, उनके उस ब्यूटी के जो डायनामिक्स है उनको चेंज करके और उनको स्विच करना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। और मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ लोगों को, सच्चा एग्जांपल है कि भाई, you don't look like Hrithik Roshan, I don't look like Ranveer Singh, but that does not make us less of a man. So the same goes with the dogs also. दिल सबके वही धड़कता है, प्यार सब आपसे उतना ही करेंगे, जान आपके लिए उतनी ही देंगे, अटैचमेंट आपसे उतना ही होगा। इनफैक्ट गेटिंग एन इंडी डॉग अडॉप्टेड इज एक्चुअली अ टास्क। लोग आते हैं, बहुत सारे उनके सवाल होते हैं, उनकी काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। If I am into the pure breed dogs also, I'm the patron, I'm the warden for pure breed dogs, being the secretary for Kennel Club of India, Rajasthan. So I have to look after that aspect also. And ऐसे लोग कोई जो लैब्राडोर की इच्छा रखते हैं या गोल्डन रिट्रीवर रखने की इच्छा रखते हैं, उन्हें एक इकोनॉमी का पार्ट ना बनाते हुए उन्हें स्विच करना एक ऐसे डॉग पर, जिससे कि मुझे या किसी भी व्यक्ति को जो जिसके पास उसके पपीज है, उसको एक रुपए का भी फायदा नहीं होगा। तो डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू इट। और घर जलाकर के तीर्थ कभी भी नहीं होता है, बट आई बिलीव अडॉप्शन एक वही चीज है। मेरा जो मेन सेटअप है, दैट इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, इट्स 8x8। लोगों के घर में जो बेड्स होते हैं ना बेडरूम में, वो उससे बड़े होते हैं। दैट इज माई मेन वर्किंग एरिया। और उस छोटी से मंदिर से, मैं उसे मंदिर बोलता हूँ अपना, बिकॉज इतनी एनर्जी पॉजिटिव वहां पर मुझे मिल चुकी है, लोगों की इतना प्यार मिल चुका है कि उस एनर्जी से वो जगह सिद्ध हो चुकी है। और वहां से अडॉप्शन कराना लोगों को, इतने सारे पपीज को, और ये वो पपीज है जिनका सड़क पर पैदा होकर के सड़क पर मरना तय था। आज आप इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। यू सी देयर कंडीशन, हाउ पैथेटिक एंड हाउ मिजरेबल लाइफ दे आर लिविंग। दे बारली सर्वाइव। उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सर छुपाने को उनके पास छत नहीं है, लोग उनको मारते हैं, दूध काटते हैं। एनिमल लविंग आप अपने आप को बोलते हो, एनिमल लविंग कंट्री बोलते हो, बट नहीं है। सड़क के कुत्तों की जब बात आती है, लोगों की नजरें ही बदल जाती है। ऐसे उस माहौल में उन लोगों को कन्विंस करके और सड़क से उन बच्चों को रेस्क्यू करके और अडॉप्शन कराना, मैं मानता हूँ ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कोई ऐसा instances हुए हैं when families have come back and said we don't want to keep the dog? 10 में से 2 केसेस में होता है, यानी 100 पपीज में से 20 पपीज ऐसे हैं, जब वो घर जाते हैं ना, तो चलो उसने तो हिम्मत करके अडॉप्ट कर लिया उस फैमिली ने, घर जाते ही दे स्टार्ट गेटिंग कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्या उठा के लिया यार, तो अच्छी ब्रीड का डॉग ले आता, ये बिल्कुल गली का कुत्ता, सड़क का कुत्ता, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक सेकंड में इंसान की साइकी चेंज हो जाती है, और वो फिर नेक्स्ट डे ही उसे वापस लेके आ जाता है कि यार ये कुत्ता तो हमारे साथ ये इशू है, कभी दादी का बहाना, कभी पापा का बहाना। तो आई ऑलवेज से यार भाई, ये एक कमिटमेंट है, इट्स अ कमिटमेंट फॉर लाइफ। थिंक अबाउट इट, हैविंग अ लाइफ, चाहे बच्चा इंसान का हो, डॉग का, जिम्मेदारी बराबर है, प्यार भी बराबर और साथ भी बराबर। अगर आप निभा सकते हो तो ही लाओ, कोई सा भी डॉग हो। इट टेक्स अ हार्ट, इट्स ए करेज। वो खाएगा भी, सुसु भी करेगा, पॉटी भी करेगा, उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, वो रोएगा भी, उसकी डिमांड्स भी होगी, नीड्स भी होगी, उसको टाइम भी देना पड़ेगा। तो इफ यू आर कमिटेड, इफ यू थिंक, ये वन वे नहीं, इट्स अ 2 वे रोड। आप डॉग को 10 मिनट दोगे तो वो आपको 10 साल का आपका कंपेनियनशिप देगा, आपको अनकंडीशनल लव देगा, सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, सबसे अच्छा दोस्त है, कभी आपको जज नहीं करेगा, आपको भगवान मान करके आपकी पूजा करेगा, आपको आपके लिए जान भी दे देगा। बट दे नीड एटलीस्ट 10 मिनट्स इन अ डे to be looked after. So if you have that 10 minutes, that golden time that you can actually spend and you can commit, then only adopt or buy, however you want, whatever you want. कुत्ता कोई सा भी घर में आता है ना, तो घर का माहौल बदलता है। आप लोगों के घर में दया पैदा कर रहे हो, आपके लोगों के दिलों में एक काइंडनेस को आप डेवलप कर रहे हो। मेरा यही है कि मेरा एक ही सपना है कि हर घर में डॉग अपना। अगर यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री में, there are 32 crore people in US as a population and there are more than 67 crore pets. तो इंडिया में तो 140 करोड़ लोग रहते हैं, और इंडिया तो बहुत ही एनिमल लविंग कंट्री है। यहाँ तो हर देवता के साथ कोई ना कोई जो एनिमल एसोसिएटेड है, चाहे गणेश जी का चूहा हो, चाहे कार्तिकेय का मोर हो, चाहे लक्ष्मी जी का उल्लू हो। तो मैं समझता हूँ सनातन संस्कृति में, इस बेनेवोलेंट कल्चर और इस कंट्री में बहुत जगह है डॉग्स के लिए, सड़क के डॉग्स के लिए, गायों के लिए। और हर इंसान ने अगर एक गाय को या एक डॉग को अपनी जिम्मेदारी मान के अडॉप्ट कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में एक भी कुत्ता भूखा नहीं सोएगा,
एक भी गाय घर सड़क पे कचरा खा करके, गंदगी खा करके और अपनी जान नहीं गई। दैट इज व्हाट माय It's a मिशन इज। beautiful tagline, Viren. It's a beautiful tagline. I've been trying to convince my own parents ki, let's keep a dog for you. Let's If you see. are I lucky, then think only a hopefully. dog comes in your life. You Oh have to yes, be the of course. chosen one. You have We to be the lost our chosen one. dog actually almost 3 years ago. Now I think my children they were devastated because my children always had a dog, a golden retriever. We had a golden retriever. The retriever was there before my children were born, so they've never known a life without a dog. So अब उनको है कि Mama, it's time. Can we get another one? So Viren, I will You be coming should. to you for that. I will You be should. You discussing should. this with you separately See, if on you have been WhatsApp. an avid dog lover and if you have kept a dog in your life and keeping away from this happiness, from this divine pleasure, you should not do I that. This agree. is injustice. This is a punishment to yourself. I mean, आप ये सोचो, my place is a house of 11 dogs, 10 abandoned out of them. One is an accidental baby which was born at my place. That is Kaju. That's a result of threesome between Bholi, Tharku and Batku. So it's a combination of Oh three my different breeds: Cocker Spaniel, gosh. a Beagle, and a Pug. And rest of them, all of them have been abandoned. So I believe those people who abandon those beautiful babies, they are so unlucky. Wherever I go or wherever I see a dog, my eyes just brightens up. I feel happy and I feel elated. मुझे लगता है मेरा कोई भाई मिल गया, कोई मेरा दोस्त मिल गया. We मुझे ought to be कन्विंस lucky करने to की have a dog. जरूरत नहीं है वीरेन. I am a certified dog lover, as is my family. So every time अगर मुझे कभी भी कोई dog मिल जाता है, कभी लिफ्ट में मिल जाता है, कभी नीचे outside the grocery store. So every time I come back and then my husband will feel, and I come and I say, A oh, it's dog time should to be get the a next. dog should be there around Yeah. you. जरूरी नहीं है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप एक डॉग ला करके अपने साथ में रख पाओ या आप उसकी देखभाल कर पाओ, उसको टाइम दे पाओ. But what best you can do is you can always take care of dogs around you. घर के बाहर निकलो, गली के बाहर निकलो, आपको सैकड़ों कुत्ते मिलेंगे और वो रेडी हैं, विलिंग है आप पर अपना पूरा प्यार नौछावर करने के लिए. आप जाके उनके करीब एक बार महसूस तो कीजिए उस एनर्जी को, उस अनकंडीशनल लव को. Absolutely. But there's one thing, जो खटकती है मुझे, जैसे कि आजकल सोसाइटी में दिखता है, nobody has conversations, everybody is aggressive. And even when we come to conversations about dogs, Viren, whether किसी को adopt करना है या किसी को breeder के पास जाना है, I have seen that the adoption lobby gets very aggressive with anybody who gets a newborn dog from a breeder. I've been abused, I've been trolled for liking. There was a friend who's a celebrity who got a tiny little golden retriever pup, and I all I commented was, oh my god, you're so lucky and I am so envious and what a beautiful pup. और उसमें भी इतनी trolling हुई है from the adoption lobby, and to me it is each to their own, but it doesn't seem to be like that. See, first of all, why are you being biased about a breed or a non-breed? A dog is a dog. आपका कहने का मतलब ये है कि प्यार के हकदार वो कुत्ते हैं जो आप अडॉप्ट करते हो, और प्यार के हकदार वो कुत्ते नहीं है, वो डॉग्स नहीं है जिन्हें आप खरीदते हो या जिन्हें आप कोई ब्रीड के डॉग हो. यू आर बीइंग बायस्ड. आप वो डिफरेंस है वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो लोगों के दिमाग और जहन में. अरे भैया, प्यार तो सभी को चाहिए. गोल्डन रिट्रीवर को क्या आप हिट करोगे क्या, या आप उसे मारोगे और बाकी डॉग्स है सिर्फ आप उन्हीं को गले से लगाओगे? नो, माय कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर. However, whatever, see, you being an individual, you have your own choice and taste. I being an individual, I have my own choice and taste. I cannot just forcefully, throw my choices on you. अगर मुझे कोई दूसरा let's say, आप तो यहाँ breed की बात कर रहे हो. I have seen people from very good families, genuine dog lovers, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो गौशालों में दान देते हैं, stray dogs के लिए काम करते हैं. उनके घर में 4 भाई हैं या 4 बहनें हैं या whatever, 4 फैमिली मेंबर्स हैं. एक को पसंद है डैक्शन, एक को पसंद है जर्मन शेफर्ड, from like 4 generations, 5 generations, I'm talking about those Rajput families. एक को पसंद है रॉटवाइलर्स, एक को पसंद है एकदम वही व्हाइट वाला पोमेरेनियन. सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है. वो वहां पर इस चीज के लिए वॉर हो जाता है कि यार मेरा फेवरेट तो यही बेस्ट है, वो दूसरा बोलता नहीं मेरा फेवरेट तो जर्मन शेफर्ड यही बेस्ट है. तो बेसिकली इट्स अ पर्सन इंडिविजुअल चॉइस. वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन इट, वी आर नोबडी टू डिसाइड ऑन इट. हाउ कैन यू जस्ट फोर्स योर चॉइसेस ऑन पीपल? मैं तो एक बात बोलता हूँ कि आप फिर एक काम करो ना, किसी खटाड़ा गाड़ी में आप ट्रैवल करो. आपको क्यों फिर BMW चाहिए, आपको क्यों ऑडी चाहिए, आपको क्यों मर्सिडीज चाहिए, आपको क्यों बहुत सुंदर बंगलो चाहिए? मैं बोल सकता हूँ, मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, बाकी तो आई कैन नॉट. एंड आई नेवर कम इनटू द डिबेट ऑफ एनी सच लॉबी.
आई डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी। आप चाहे, और मैं सबको ये बोलता हूँ, आई नेवर हैव एनी प्रेजुडाइज फॉर एनीबॉडी। घर में आपके कुत्ता होना चाहिए, घर में आपके कोई जीव होना चाहिए जिसकी आप सेवा करो, जिसे आप प्यार दो। अब वो किसी भी शक्ल का हो, किसी भी सूरत का हो, बेचारा हैंडीकैप हो, अंधा हो, कोई बेचारा स्ट्रे डॉग हो या कोई ब्रीड डॉग हो, सबको आप भरपूर प्यार दो। डॉग सारे डॉग्स ही होते हैं। और आप किसी भी इस तरह के क्राइटेरिया पे किसी को अगर आप ट्रोल कर रहे हो तो ये आपकी छोटी सोच दिखाता है। आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। डॉग डिफरेंशिएट नहीं कर, डॉग को तो पता ही नहीं बेचारे को कि मैं क्या हूं। उसे तो इतना पता है कि ये मेरे पापा मम्मी है, मुझे इनको प्यार करना है। अब वो चाहे स्ट्रे डॉग हो और चाहे कोई ब्रीड का डॉग हो। जिन लोगों को ब्रीडर के पास जाना, देयर आर सो मेनी ब्रीडर्स हु आर मशरूमिंग ऑल ओवर द प्लेस। हाउ कैन यू टेल देम कि सही रास्ते पे कैसे जाएं, not to get conned into all these little breeders on the side? देखिए, ये एक पर्सनल चॉइस होती है कि आप कहां से ले रहे हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु डोंट हैव एथिक्स। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर से तो वेजिटेरियन है पर उनके पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं। आई ऑलवेज टेल पीपल, अगर आपको कहीं से पपी है, कोई पर्टिकुलर ब्रीड का चाहिए, ट्राई एंड फिगर आउट आपके सर्कल में कोई पर्टिकुलर उस ब्रीड के किसी फैमिली के पास डॉग हो जहां नेचुरली ब्रीड हुए हुए डॉग्स हो। नेचुरल, क्योंकि ब्रीडिंग भी एक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल नीड है हर एनिमल की। आप हर किसी कुत्ते को लेकर के उसकी स्पेइंग करा दोगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर ऑफ लॉ। मैं नहीं बोलता हूं कि मेक इट लाइक अ फैक्ट्री, आप उसको ओवर प्रोडक्शन करा रहे हो। आपने अगर उसके लाइफ में, उसकी 12-15 साल की एज है, अगर उसके 1-2 बार पपीज दे भी लिए, गिविंग देम द राइट टू बी अ पेरेंट, मेकिंग देम हैप्पी, एक चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, दिस इज द अल्टीरियर प्लेजर, दिस इज द अल्टीरियर हैप्पीनेस दैट एनी लिविंग बीइंग गेट्स। So you cannot just deny them. आप ऐसी फैमिली ढूंढिए जहां नेचुरली बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में डॉग्स कंपेनियन की तरह रहते हो, फैमिली की तरह रहते हो, उनके बेड्स में उनके साथ सोते हो। अगर उनके यहाँ कभी बेबीज हो रहे हैं, आप जरूर उनसे पिक कीजिए। वी ऑलवेज ट्राई, व्हेनेवर आई गेट, जैसे आपने मुझे बोला कि यू नीड अ गोल्डन रिट्रीवर, तो आई विल ट्राई एंड फिगर आउट कि मेरे सर्किल में, बिकॉज इट्स बीन 25 years of my journey, I have given so many dogs to so many people. Now it's a chain of thousands and thousands of people who genuinely wants कि उनकी बिटिया भी माँ बने, उसको भी वो सुख मिले जो उसका नेचुरल राइट है। तो ऐसे लोगों के पास से जब पपीज आते हैं, एकदम गोलू गोलू प्यारे प्यारे से बच्चे आते हैं, कोई से भी आए, तो उनको देने में और उनको रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दे हैव कम आउट ऑफ फोर्सफुल ब्रीडिंग। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट। आई टेल यू व्हाट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, पीपल थिंक आई एम अ ब्रीडर। आई हैव नेवर ब्रेड अ सिंगल डॉग इन माय लाइफ, नेवर एवर, बिकॉज आई कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ करेज कि मैं अपने बच्चों को पैदा करा के अपने हाथों से उनको बड़ा करके और फिर एक दिन उनको किसी और को दे दूं। आज ही 10-11 डॉग्स क्यों इकट्ठे हो गए मेरे पास में? मैं चाहता था उनको अडॉप्ट करा देता किसी और फैमिलीज में, बट उनसे ऐसा मोह हो गया। कोई 10 दिन रुका तो प्यार हो गया, कोई 15 दिन रुका तो प्यार हो गया। नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ। और मुझे बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। एवरी डॉग हैज अ कॉस्ट, एवरी डॉग नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ मेंटेनेंस, बट आई डू बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी। दैट इज ऑल व्हाट आई हैव। How many families have you helped adopt? No count. Now I forgot the count. I started when I was I was a teenager. Now it's been a journey. 98 से लेके 2022, 24-25 साल हो जाएंगे अगले साल। So, Aage, what are your plans now? And that dating app I wanted to ask you about. How does that work? People again have lot of reservations. और मेरे ऐप में कई बार ऐसा हुआ कि people posted their own pictures कि instead of our dogs we want to have a companion. So we are working on something. It's like a Tinder for That's both hilarious, owners actually. Yeah. So it's a Tinder for both owners and their babies. I mean, as in dogs and their bitches, who are looking for a companion, for a partner, and for the owners who are looking for a like-minded owner, a like-minded person who equally love dogs like them. So I'm working on it. People struggle to find a companion because again people are biased. People want to have a boy, और सभी अगर बॉयज रखेंगे तो फिर जो बेचारे बेटियों वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? So ये डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जो रेशो है इनका। There are like 95% people have got boys. So all the owners keeps on calling me कि भैया हमारे बेटे का ब्याह करा दो, शादी करा दो, उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढ दो। So it's definitely a very challenging thing, but I'm working on it. It's the most interesting, satisfying, soul satisfying job that I do. And lot of people come and say that we are envy of you. I believe they have the reason, because they are all living that stereotype life. We are just struggling in the rat race to survive, to sustain. But for me, I'm living with dogs, always happy, all the time surrounded with them, being cuddled, being pampered, being licked, and being showered with endless, infinite happiness. So it's a great pleasure. It's a great honor to be a part of this journey, and it's been a great journey.
I hope more and more people learn from you. And in this very angry society जो आजकल है, I think more and more people need to adopt a dog or get a dog, calm down, and focus elsewhere instead of just fighting with everybody they meet these days. And I think pet therapy all the way, Viren. My place, every day, probably more than 150 people come every day. Youngsters, kids, boys, girls, uncle, auntie. They just want to spend time with dogs. These are those people who do not have the privilege to have a dog in their life. But then I say, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आओ ना, खेलो मेरे डॉग के साथ. Probably शायद आपको प्यार और बढ़ेगा, उस इंतहा तक जाएगा कि आप मजबूत होकर के you will decide to keep a dog, to adopt a dog. Not probably today, but maybe later on. और कुछ नहीं तो at least you will learn to be compassionate to these animals. आज एक कुत्ते को देख के आपके दिल में दया आई है, तो कल को आप किसी राह से गुजरोगे, कोई सड़क पे आपको बेचारा वो भूखा बच्चा मिलेगा, कोई डॉग मिलेगा, तो शायद आप उसको थोड़ा काइंडनेस और एम्पैथी से देखोगे और आप उसकी हेल्प करोगे, आप उसे फीड करोगे, आप उसे वजह दोगे कि उसे भी खुशी मिले इस दुनिया का पार्ट होके. I wish you all the very best for more work, more expansion to your plans. I'm sure you've got more things coming up. I look forward to hearing about it the next time. For sure. Take good care of yourself. Nice talking to you. See you soon.